Hello, my super heroes. Welcome back to our channel English Fluency Corner. I hope you must be doing well. My name is Rajiv. As you very well, we have started very prolific channel for you. And in that channel, the one very significant thing has been started by us for all those needy student, all those people who are having a very great desire to be great speakers. So for all of them, this is gonna be very optimal. I'm telling you. You mark my word. Those whomsoever have really watched out the first video of mine, I'm sure they must have learned many more things, especially regarding English communication. So I hope you must have enjoyed my first video, and this is the second day, and we have already made the 60-day challenge. It means whenever we enter 2026, we would be really very complacent with one thing, that okay, now we have started speaking some of the words, and after accomplishment of the 60 days, you mark my word, I guarantee you, you would be really smug with one thing, that whatsoever I have imparted you in the term of the English communication, that was really handy, that is handy, that would be handy in the further moment. So yes, let's get poised for learning something new in the second videos. And if you are the new one, so I would say come regularly, subscribe our channel and learn many more things for the further moment. तो स्टूडेंट, हमारे सुपर हीरोज आ जाइए। आज हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं आपको बता दूं। सेकंड क्लास में हम जब किसी चीज पे स्ट्रेस आउट डाल के बोलते हैं ना स्टूडेंट, कि अच्छा तुम वही हो जो मुझे कल मिले थे, तो कहते अरे यार मैं वही हूँ, तुम भूल गए, हमने 2 साल पहले बात की थी। जब हम किसी चीज पे स्ट्रेस डालते हैं ना, जैसे यू आर द वन, आई एम द वन, शी इज द वन, तो स्ट्रेस डाल के जब भी बोला जाता है स्टूडेंट, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? द वन का यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, लिखा हुआ है, देखो तुम वही हो जो मुझे चिढ़ाते हो, ये वही है, यही वही घर है जहां मैं रहता हूँ, तुम वही इंसान हो जो अच्छा गाता है। सो ये सारे एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे हैं, हमारे सारे सुपर हीरोज। आपको बता दूं तो ये चीजें पता आपको, इंग्लिश निगोशिएशन में हम बहुत ज्यादा ये चीजें बोलते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, that the sentences which I am really depicting over here, which are very significant in the term of spoken. It's not like that everything I'm just putting over here. No, only the thing which are really being asked in English communication, only that thing is being taught over here. So don't get bothered about anything, that something unnecessary, something unpredictable, something which is looking like a trash is not going to taught you anymore. So yes, don't get bothered about this thing. तो देखिए स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं क्या? आज हम सीखने वाले हैं किस किस तरीके से हम चीजों को चेंज करने वाले हैं। हमारा कंटेंट क्या है, क्या हमारा कंटेंट है, क्या है? देखिए हमारा कंटेंट है द वन। जैसा कि मैंने आपको बताया, तुम वही हो, क्या बोलते, यू आर द वन, मैं वही हूँ, आई एम द वन, ये वही लड़का है, सी इज द बॉय, सी इज वेरी बॉय। मतलब जब कभी हम किसी भी चीज पे स्टूडेंट स्ट्रेस डाल के बोलते हैं ना, मैंने कहा ये तो वही मोबाइल है जो अभी शोरूम में देख के आया हूँ, तो दिस इज द मोबाइल या दिस इज वेरी मोबाइल। हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है, या तो दा का यूज कर सकते हैं, वेरी का, उसके बाद जिसकी बात हो रही है उसका नाम। जैसे मैंने कहा तुम वही लड़के हो, यू आर द बॉय, मैं वही इंसान हूं, आई एम द पर्सन, आई एम वेरी पर्सन। इन द सेंस जब कभी भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज पे स्ट्रेस आउट डाल के बोलते हैं, in that stress out thing, what we have to use, we have to use the or maybe very. Both are legitimate, you can use both of them, it depends up to you. So let's get back to the the things that is on the example. We would be really complacent with the example. Example के थ्रू हम समझते हैं स्टूडेंट क्या क्या है हमारे। देखो इधर एग्जाम्पल में हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो लिखा है आपके पास, मैं वही लड़का हूं, तो आपने देखो तो क्या है इसमें, द, वेरी और सब्जेक्ट। मतलब अगर जब कभी आप वही बोल रहे हो और वही के साथ में आप कोई भी नाम बोल रहे हो, मैंने कहा वही घर, वही लड़का, वही मोबाइल, वही लैपटॉप, तो आपको क्या करना है, या तो उस वही के लिए आप द यूज कीजिए, या फिर क्या कीजिए, आप वेरी का यूज कीजिए। बोथ आर लेजिटिमेट एंड बोथ आर बीइंग यूज्ड इन स्पोकन। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे लिखा मैं वही लड़का हूं, तो आपने कहा तो वही तो लिखा ही है, साथ में और क्या किया आपने, साथ में आपने लड़का भी लिखा, तो आपने कहा आई एम द बॉय। और अगर आपको द यूज नहीं करना है तो क्या यूज कर सकते हो, आई एम वेरी बॉय। एंड या डोंट गेट बॉदर अबाउट दिस थिंग, दैट ओके वेरी इज कॉल्ड बहुत, बहुत आई नो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत, लेट मी टेल यू, वेरी इज आल्सो गोइंग टू बी यूज टू स्ट्रेस आउट समथिंग। किसी को स्ट्रेस आउट करते हैं तब भी हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, तब भी हम वेरी का यूज करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, मैं वही लड़का हूं, आपने क्या कहा, आई एम द बॉय। क्या लिखा आपने उसके लिए, वही के लिए, या तो द या वेरी, या आप कह सकते हो आई एम वेरी बॉय। कम टू द सेकंड में, ये वही घर है जहां मैं रहता हूं। अब लेट्स सी, दिस इज
वही घर, मतलब वही के लिए मैंने दा लगाया या फिर क्या लगाया स्टूडेंट, वेरी लगाया। बोथ आर गुड, इज इट्स अप टू यू, यू कैन यूज एनी ऑफ देम। इट इज द हाउस, इट इज वेरी हाउस, जहां मतलब वेयर आई लिव। थर्ड थिंग, तुम वही इंसान हो, मतलब व्हाट आई डिड, वही के साथ में क्या लगा हुआ स्टूडेंट, और माय सुपर हीरोज वही के साथ में इंसान लगा हुआ, तो उस वही के लिए मैंने क्या लगाया, दा लगा दिया। और बाकी या हम क्या लगा सकते हैं, वेरी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम वही चाय वाले हो जो प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या बोलेंगे हम, यू आर द टी मैन हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर, या टी मेकर हम बोल सकते हैं। या मैं बोलूंगा ये वही मोबाइल है, दिस इज द मोबाइल, और दिस इज वेरी मोबाइल। यू कैन यूज एनी ऑफ देम, मे बी वेरी और मे बी द, बोथ आर सुटेबल। तो हम कैसे बोल सकते हैं, जब कभी भी आपको किसी चीज पे स्ट्रेस आउट लेना है, स्ट्रेस आउट के साथ में उसका नाम भी बताना है आपको। जैसे मैंने कहा कि ये वही पंखा है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द फैन, या दिस इज वेरी फैन। या मैं बोलूंगा ये वही मोहल्ला है जहां पे लोग रोज लड़ते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द लोकेलिटी, या दिस इज वेरी लोकेलिटी वेयर पीपल फाइट रेगुलरली या एवरीडे। यू कैन यूज एनी ऑफ देम। तो जब कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज पे स्ट्रेस आउट देके बोलते हैं, for that what we have to use the or very, both are suitable. I hope student, I hope my superheroes, you must have understood this and you must have grabbed this thing very easily. So whenever you are trying to speak anything like मम्मी ये वही डिश है जो मुझे पसंद है, तो आप क्या बोलोगे, मदर दिस इज द डिश, दिस इज वेरी डिश which I like. I mean, these are the sentences which is generally used in a normal speaking. I'm talking about in general basis. हम नॉर्मल तरीके से जब इस बात करते हैं ना, तो इन डेली रूटीन स्पीकिंग में ये चीजें बहुत यूज होती हैं। तो जब भी आप किसी पे स्ट्रेस आउट करें, स्ट्रेस आउट करके उसका नाम भी बोलें, तो हम किसका यूज करते हैं, दा का, या फिर किसका करते हैं स्टूडेंट, हम वेरी का यूज करते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, ये आपको इतना समझ में आया होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी आर स्ट्रेसिंग आउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर हम किसी भी चीज पे स्ट्रेस आउट होकर बोल रहे हैं लेकिन उसका नाम मेंशन नहीं किया मैंने, स्टार्टिंग में उसको बोल दिया, जैसे मैंने कहा मैं वही हूँ। अब मैंने ये नहीं कहा मैं वही लड़का हूँ, वही इंसान हूँ, वही टीचर हूँ, मैंने बोला मैं वही हूँ। उसके लिए आप दा का यूज तो करोगे, लेकिन साथ में क्या लगाओगे, वन, आई एम द वन। मैंने कहा तुम वही हो, यू आर द वन, ये वही है, ही इज द वन। इसका मतलब अगर आप सिर्फ द वही बोल रहे हो, वही के साथ में कोई इंडिविजुअल नाम नहीं बोल रहे हो, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उस कंडीशन में हम अकेला क्या लगाते हैं, हमारे सुपर हीरोज, वी यूज ओनली द वन। व्हाट, वी यूज ओनली द वन। तो हमने द वन का यूज कर लिया। जैसे देखो, मैंने कहा तुम वही हो, तो मैंने इसके बाद में कोई वो नहीं लगा, तो मैंने क्या लगाया, यू द वन, जो मुझे चढ़ाते हो, हु इरिटेट्स मी। जैसे मैंने कहा मैं वही हूँ, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैं वही लड़का हूँ, मैं वही इंसान हूँ, मैं वही टीचर हूँ, वही प्लेयर हूँ। आई हैवंट मेंशन एनी ऑफ द सब्जेक्ट ओवर हियर, बट आई एम माई आई एम द सब्जेक्ट, मैं ही सब्जेक्ट हूँ, तो मैं अपने आप पे स्ट्रेस आउट कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट खुद ही स्ट्रेस आउट कर रहा है, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, द वन का यूज करते हैं। तो मैंने कहा आई एम द वन हु टीचेज यू। यहाँ पे लिखा रोहन वही है, तो मैंने कहा रोहन इज द वन जो अच्छा खेलता है, हु प्लेज वेल। इसका मतलब ऐसे सेंटेंसेस हमारे सुपर हीरोज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डेली रूटीन में, और ऐसे ही बिट बाय बिट करके, रिमेंबर वन थिंग, don't get bothered about the kind of the mistakes, because if you are beginner or the learner, always take one thing in your mind, always do one thing, just prefer to the fluency over accuracy. Remember this thing. Most of the people just say that, okay, if I speak, I really want to speak with the accuracy. Accuracy can occur only when you are profound in that. Remember this thing. If you are beginner or the learner, you are supposed to be really polished for one thing. The mistakes are the part in the beginning, so get it in your mind. I hope you must have understood it. तो ये चीजें हमने क्या सीखी हमारे सुपर हीरोज, कि किस तरीके से हम दावन का यूज करते हैं और किस तरीके से किसका यूज करते हैं, हम दा के साथ में या दा के और या बैरी के साथ में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लगाते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। तो जो भी हमारे न्यू यूजर्स हैं, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, सुपर हीरोज जुड़े हैं, मैं उन सबको बता दूं, आप बस कंसिस्टेंट रहिए और फ्लुएंसी की सारी या जो भी स्पोकन की है, जस्ट लीव ऑन टू मी, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, एज आई ऑलरेडी मेंशन द फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो एज वेल, दैट you just have to rely on me and leave everything on me. I'm giving you each and everything which is significant for the purpose of the English negotiation. But what you have to do, you have to share this, subscribe us, and apart from this, be consistent with us. Only then you can learn, only then you could be ready, because within 1 or 2 days it is impossible to be a good speaker. And don't get bothered about the one more thing I told about, that the mistakes.
you are the beginner. So I hope you must have understood this thing. So enjoy learning this thing and keep learning, keep spreading this thing to others, share this thing with the other and those who really want to become a good speakers, want to learn it, and just stay healthy and stay tuned with our channel and keep learning.